जिस जनरेशन को मैं बिलोंग करती हूँ, और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आल्सो बिलोंग टू द सेम जनरेशन, हम लोगों के घर में अखबार आता था, और गर्मियों की छुट्टियों में जब हम बच्चे थे तो हमारे घर नौनिहाल, तालीम और तरबियत, रीडर डाइजेस्ट ही आता था हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए। सो इसलिए हमें एक पढ़ने की आदत थी, और हम लोगों को एक सीख मिली हुई थी, या एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी पढ़ने की, रीडिंग हैबिट डेवलप करने की। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मॉडर्न जो हमारा नया बच्चा है, उसको ये इतना ये इंसेंटिव नहीं है। नाउ आई वुड लाइक यू टू नो कि जो थोड़ा सा, जो अभी तक मेरी ये आदत है कि रात को सोने से पहले कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए होता है कि मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ नहीं तो मैं कोई पुराना अखबार पकड़ लेती हूँ, या कोई किताब पकड़ लेती हूँ, या कुछ है, या किसी मैगजीन का एक पेज या एक आर्टिकल पढ़ लिया। I would just, it's just a little sharing. I would like all of you to tell me if you have such habits, या have you changed your habits, और आप भी नए हमारे जो जनरेशन है उसकी तरह आप भी रात को व्हाट्सएप चेक करके या अपना फेसबुक चेक करके सोते हैं। Can you just share something with me? न्यूज़पेपर रीडिंग, यस न्यूज़पेपर। अच्छा, आप न्यूज़पेपर, अच्छा ये एक मैं पूछना चाहती हूँ, आई डू यू स्टिल हैव न्यूज़पेपर कम टू योर, क्योंकि मुझे याद है हमारे घर वो आता होता था, जो हॉकर था, न्यूज़पेपर एजेंट जो था, वो आता था और वो न्यूज़पेपर, रोज का न्यूज़पेपर, एक उर्दू का, एक इंग्लिश का, एक कोई मैगजीन या कुछ वो देके जाता था। Yes, a lot of you have written yes, कि you do read newspapers, and which is good, excellent habits. And but I just wanted to know कि आप में से कुछ ऐसे हैं जो माशाल्लाह you still read a book before you going to bed, excellent, कि जो नहीं अब ये कर पाते, या जिन्हें ये अब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। would you like to share कि आप कुछ और आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं या कुछ ऐसा है, अगर है आप, है कोई आपका ऑनलाइन बुक्स का? ऑलराइट, now if you are looking at my presentation, मेरी जो आपकी स्लाइड्स जो हैं आपके सामने आ गई हैं, if you look at them, look at the page number 2 पेज जो है इसका, उसमें है there is previewing activities. Now, if you look at these previewing activities, there are some questions here. Do you like to read? If yes, what do you like to read, and how much do you read every day? Specify your reading hours. Can you please give me a little feedback here? क्या पढ़ते हैं, तो मेरा आई थिंक मेरा आ रहा है, लोग पेपर बुक्स पढ़ते हैं, लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, which is a good habit, good. But ई बुक्स भी पढ़ते हैं, excellent. But how much do you read every day? We would like to know a little bit. Oh, your bedside has a lot of online articles which are shared by friends. WhatsApp? आजकल तो WhatsApp पे ज़्यादा sharing होती है. All right, you like to read history, fiction, and poetry. Excellent. Um, technical reading, yes. Professional technical reading. Fiction, a lot of us read fiction. I think fiction is a go-to thing for all of us. Oh, you read tafsir and hadith, mashallah, mashallah. Excellent. Reading for preparation of lectures, definitely. One of you have written that 1 hour you read for an hour each, which is good. An hour is good enough, I think. Tafsir, mashallah. Liberty period. All right. Self-help books, which is good. I mean, these are very much available now and very much in. अब लोग, बहुत से लोग जो हैं वो ये पढ़ते हैं. Well, someone has written that they can't sleep without reading. Same as me, I can't sleep without reading more than 2 hours, which is excellent, excellent, excellent. So, uh, oh, your Harry Potter, mashallah. I mean, Harry Potter is, and I find that book is not bad in the sense कि उसकी read बड़ी अच्छी है, बड़ी आप regularly उसको एक कहते हैं एक flow में आप उसे पढ़ लेते हैं. ये
उस किताब की खासियत है। कहानी तो वो जो है सो है, वो उसका है। माशाल्लाह, वन ऑफ यू हैज रिटन कि आप सिर्फ पढ़ती नहीं है, आप लिखती नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां और आपके कलम को ताकत अता करे। वेरी मच, वेरी गुड। अच्छा, लेट्स कम बैक नाउ। We have, as I said in the very beginning, in the beginning of my session, that we belong to that generation which was um, which had a habit of reading. हम लोगों को घर में न्यूज़पेपर आने की वजह से, मैगजीन आने की वजह से हमें आदत थी। मगर द यंग जनरेशन जो इस वक्त है, उसकी अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी ये है कि घर में न्यूज़पेपर नहीं आता, अब घर में मैगजीन नहीं आता, बहुत कम किताबें होती हैं, बहुत कम लोगों के घरों में लाइब्रेरीज हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को किताब पढ़ने की आदत नहीं है। और किताब अब इतनी महंगी हो गई है कि किताब खरीदना भी, एक टेक्स्ट बुक भी खरीद लें तो बहुत एक होती है कि जी महंगा है और उसका सारा, ये सब चीजें तो हैं। तो अब जो हमारे जो इस दफा आई थिंक जो someone has written Urdu poetry is neglected. Yes, mashallah. I remember कि हमारे एक होते थे क्लासरूम में बैतबाजी हो जाती थी कभी स्कूलों में। आई मीन टीचर्स हमें एक असाइनमेंट ये देती थी कि ठीक है जी, फलां हर्फ की जो है शेर आप याद करके आए। तो एक बैतबाजी होती थी, फिर जिसका बेहतरीन शेर वो सुनाती थी स्टूडेंट, उसको इनाम मिलता था। ये एक्टिविटीज अब शायद, यही आई थिंक यही सवाल अब मेरा ये है कि अब इस नई जनरेशन को, जिसको अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि घर में उसके पास रीडिंग मटेरियल अवेलेबल हो, उसको, उस जनरेशन को हम किस तरह क्लासरूम में एक पढ़ने की आदत बना सकते हैं? क्या है जो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो हम उनके साथ एक स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिससे उनको पढ़ने की आदत पड़े? अब पहले तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि फिक्शन पढ़ने की या एक्स्ट्रा कुछ उनको नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ने की अ, उनको एक मिले। दूसरी बात जो है, दूसरा आई मीन मेरे आई एम जस्ट समराइजिंग अ लिटिल बिट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय सेशन। एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अलावा हम अपने जो स्टूडेंट है उसको क्या दे सकते हैं कि वो पढ़े? क्या हम उसको, किस तरह हम उसको यानी ही और शी सो बिजी, उसने कॉलेज आना होता है, फिर उसके बाद उसने एकेडमी जाना होता है, फिर उसने होमवर्क अपने करने होते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता सो मच। हाउ कैन वी encourage our students in the classroom so that they read something, they have, एक तो होता है ना प्राइमरी रीडिंग, एक सेकेंडरी रीडिंग। सेकेंडरी रीडिंग की तरफ हम अपने स्टूडेंट को किस तरह माइल कर सकते हैं? अब सेकेंडरी रीडिंग में दो किस्म की होती है। एक तो जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि हमें जो, हम उन्हें फिक्शन तरफ लेके जा सकते हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा रीडिंग। फिर एक सेकेंडरी रीडिंग होती है जो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड सेकेंडरी रीडिंग होती है। जैसे आपका टेक्स्ट है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी, अगर आपका मैथ भी है या आपका लैंग्वेज भी है कोई, या आपकी कोई और कंप्यूटर्स भी आप पढ़ा रहे हैं, आप पर्शियन पढ़ा रहे हैं, आप जो भी आपका सब्जेक्ट, उसमें भी आप उनको किस तरह इनकरेज कर सकते हैं कि वो कुछ और भी पढ़ें, सिर्फ वो टेक्स्ट बुक का रट्टा लगाने के बजाय कुछ और भी उसको एक्सट्रोनियस, जरा एक सेकेंडरी रीडिंग जिसे हम कहते हैं, वो भी है। तो जो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप एक्टिविटीज में देखें, हाउ डू यू encourage your students to read other books beside the textbooks? You have to give me 5 strategies, and then you have to suggest 5 ways of encouraging students to enter the library and use it. So these last जो दो हैं, आप, I'm giving these questions to you to think over, and जब हमारा आखिरी हाफ एन आवर का सेशन होगा, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोगों के जो माइक्स हैं वो अनम्यूट हो जाएं, and then you can read out. You can also send me your
ऑनलाइन आप मुझे भेज सकते हैं, आपका जो हमारा बोर्ड है उसके ऊपर आप अपनी सजेशन रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। मगर इसके अलावा आप मुझे वैसे भी सेंड कर सकते हैं, आप सॉरी वैसे भी सेंड करने का मतलब है कि आपको वो जो हाफ एन आवर का सेशन मिलेगा उसमें यू कैन टेल अबाउट योर रिकमेंडेशंस। नाउ ये तो हो गई हमारी pre-viewing activities and what exactly is this session is going to be about. So you get an idea that we are going to discuss reading and we are going to discuss books basically. The importance of books and how as teacher हमारे लिए books जो है ना they are like our lifeline. हमारे प्रोफेशनल जो आप ये कहो ना जो ब्लड है जो है वो किताब है। सो किताब की अहमियत और फिर किताब पढ़ने वाले की अहमियत इसकी बात करेंगे। फिर किताब की अहमियत को हम किस तरह जो कम होती जा रही है उसको हम किस तरह फिर से रीइंफोर्स कर सकते हैं ये। और तीसरी बात ये कि हम जब अपने स्टूडेंट को क्या स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं, क्या तरीके अपना उनको बता सकते हैं जिससे वो ना सिर्फ अपने टेक्स्ट पढ़ने, टेक्स्ट को सही, एक तो पहले टेक्स्ट सही पढ़े, टेक्स्ट को सही तरह जिस तरह खंगाल के पढ़ने की ज़रूरत है वो कर सके, और उसके अलावा फिर वो सेकेंडरी टेक्स्ट किस तरह पढ़े और सेकेंडरी टेक्स्ट जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने का उसको हम क्या तरीके। ये देखें ना आप जैसे मेरा मेरा जो सब्जेक्ट है लिटरेचर उसके अंदर आप कोई ऑथर उसे कहें, उस ऑथर का कहें कि आप इसकी 4 किताबें पढ़ लें। अब वो जहाँ उसको 6 असाइनमेंट्स करनी है, उसको एकेडमी भी जाना है, उसको दूसरे विषय से देखते हैं, स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो 6 किताबें पढ़ सके। उसको क्या तरीकेकार अपनाना है या क्या तरीका हमें उसको सिखाना है कि वो इनकी तरफ माइल भी हो और उसके अलावा वो ये अपनी बाकी भी जो मसरूफियात हैं उन्हें भी साथ रख सके। सबसे पहले अगर नेक्स्ट स्लाइड हो जाए शो करते हैं तो सबसे पहले तो हम रीडिंग की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स योर माइंड एंड गिव्स यू एक्सेसिव नॉलेज एंड लेसन्स ऑफ लाइफ. It helps you to understand the world around you better. It keeps your mind active and enhances your creative ability. So यहाँ पे जो keywords हैं वो है develops your mind and enhances your creative ability. रीडिंग का ये इम्पोर्टेंस है। पढ़े क्यों पढ़े हम, सवाल तो ये उठता ना, हम क्यों पढ़े। बगैर पढ़े भी तो हमारा गुजारा हो जाता है, बहुत से लोगों की जिंदगी गुजर जाती है बगैर पढ़े, जरूरत है पढ़ने। लेकिन पढ़ने की अहमियत क्या है? पढ़ने की अहमियत ये है कि ये आपके दिमाग को तरोताज़ा रखता है, आपके जो आपका माइंड है उसको डीजेनरेट होने से बचाता है। हमारी जो नई है, बहुत से जो हमारे हम असर हैं या हमसे ज़रा सीनियर्स हैं, उनके अंदर एक नई बीमारी जिसका बहुत सुनने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा अब उसको बहुत ज़्यादा वो फैल गई है, वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया का बड़ा जिक्र होता है, ये जी अफला पहले नहीं होता था। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले दिमाग जो था उसको लोग इस्तेमाल करते रहते थे। You know, looking at the phone or looking at your iPad, this is or looking at your television or your other screens, this is sedentary activity, whereas reading is an active activity. जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप सोचते भी हैं, आप सवाल भी करते हैं। जब आप देख रहे हैं तो वो तो सवाल और वो जो भी आपको यानी है वो पूरा एक रिएक्शन आपको पूरा दिया गया, एक 4-5 डायमेंशनल चीज आपके सामने आ रही है। वो जो भी डायलॉग्स चल रहे हैं या जो भी पीछे बैकग्राउंड दी जा रही है, आपको तो सारा पता, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो सोचना ही नहीं। जबकि आप किताब पढ़ते हैं और किताब का आप जो सफ़ा पलटते हैं और फिर आगे पढ़ के आप दोबारा उस पहले या दूसरे सफ़े पे आते हैं कि आपने आपने आगे जो बात पढ़ी थी उसका तो आपको, अब जो पीछे पढ़ी थी उसका तो आपको एक नई नई उसकी ज़ाविया नज़र आए तो आप दोबारा पढ़ने जाते हैं। ये चीज़ जो है ये आपके दिमाग को एक्टिव रखती है। ये चीज़ आपके दिमाग की को
इंगेज रखती है. So the reading की importance ये है. This is what is important about reading. This is why reading needs to be encouraged and be brought back into our lives. जो हमारी यूथ की लाइफ में ये निकल गए हैं, ये चीज़ दोबारा हमारी यूथ की लाइफ में आना चाहिए और मस्ट है, ज़रूरी है कि ये दोबारा लाया जाए. अगर नहीं है ये, तो इससे एक जो हम अपने सीनियर्स और हमारी अपनी जनरेशन में उसके ड्रॉबैक्स देख रहे हैं, वो ये ड्रॉबैक्स इन्हांस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, विच वी वांट टू स्टॉप. सो रीडिंग हैबिट डेवलप करना हमारे स्टूडेंट में, हमारी क्लासरूम में हमारी एक जिम्मेदारी है. So we are not only going to discuss why reading is important, we are also just going to discuss how we are going to encourage our student to start reading again, to be to be happy in reading again in the classroom. We are going to teach them how to do that. All right, and we are going to really have about a discussion about it. All right, can we have the next slides, please? ये तो हो गई, उससे अगली वाली. Yes, importance of reading. Reading is a multifaceted process involving word recognition, comprehension, fluency, and motivation. अब रीडिंग है क्या? मल्टीफैसेटेड है. मल्टीफैसेटेड का मतलब इसमें आपको बहुत सारा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप किताब पढ़ें और आप एक स्टोरी पढ़ें, नहीं, इसमें बहुत कुछ है. मेरे पास अगेन मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है. तो मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, और खासतौर पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने आगे CSS का एग्जाम देना होता है या उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना होता है. तो दे कहते हैं जी हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. तो मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप पढ़ें, रीड द लैंग्वेज. बिकॉज जो रीडिंग से आपके वर्ड्स आपके सामने आते हैं, और उनको वर्ड्स को जब एक दफ़ा आप पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में वो ठहर जाते हैं. While doing इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज. और लिंग्विस्टिक्स जब मैंने पढ़नी शुरू की तो लिंग्विस्टिक्स का एक उन्होंने कहा कि जो साइको लिंग्विस्टिक्स है उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी लर्न अ लैंग्वेज, तो उन्होंने जो मैंने बुक पढ़ी उसके अंदर बड़े फेमस ऑथर हैं जो उन्होंने बात की, वो ये थी कि लैंग्वेज इट्स लाइक अ ग्रिड, और ये ग्रिड वी आर बॉर्न विद दिस ग्रिड. ये अल्लाह मियाँ ने हमें पैदा होते ही ये ग्रिड हमारे दिमाग में फिट की होती है. और ये ग्रिड जो है, ये इसमें आप कोई भी आप जुबान फिट कर सकते हैं. अगर आप फ्रांस में पैदा हुए हैं तो आप फ्रेंच पढ़ रहे हैं. अगर आप जैसे अफ्रीका में पैदा हुए हैं तो आप सोहाली पढ़ रहे हैं. So you can, any language can be fitted into this grid, and any more than one languages can be fitted into a grid. Because, for example, a Pakistani couple goes to France and their child is born there, तो वो फ्रेंच वो बच्चा फ्रेंच उसी तरह बोलेगा जिस तरह बाकी फ्रेंच बच्चे पढ़ते हैं. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पाकिस्तानी हैं पेरेंट्स के, उसके फ्रेंच पेरेंट्स हैं. So it doesn't matter whichever whatever language you are trying to study, वो grid हर language को accept करता है. So basically, if any and every language can be learned by any one normal human being, then we can uh, how can we do that? I mean, हमारे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और हमारा स्टूडेंट बड़ा एंक्शस होता है कि ये जुबान उसे आए. फिर क्या है जो वो करे तो वो उसे जबान आ सकती है. एक बात जो वो कर सकता है, जो उसके हाथ में है, वो अब हर स्टूडेंट तो हमारा इंग्लैंड या अमेरिका नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाए, फिर वो क्या करे? वो सिर्फ टीवी पे फिल्में ही देखता रहे, या किसी अकेडमी जाके वो सीखे? नहीं, जरूरी नहीं, वो घर में भी कर सकता है. ऑल ही और शी नीड्स टू डू इज स्टार्ट रीडिंग. बिकॉज वो जो लफ्ज उसके सामने आते हैं, वो लफ्ज उसके लिए
ब्रिक्स बन जाते हैं। उसकी लैंग्वेज की दीवार बनाने के लिए उस वोकैबुलरी की वो जो ईंटें हैं वो उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहले उसे जुबान के सीखने के लिए उसको लफ्ज़ों की पहचान जरूरी। सो वर्ड रिकग्निशन, रीडिंग इज समथिंग दैट हेल्प्स यू विद वर्ड रिकग्निशन। दूसरी कॉम्प्रिहेंशन, ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंशन आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पास लफ्ज़ आ गए, अब उन लफ्ज़ों की आपको पहचान भी ज़रूरी है, उसका मीनिंग भी ज़रूरी है। सो यू डू दैट। फ्लुएंसी ऑफ कोर्स, देन यू नीड टू स्पीक दैट लैंग्वेज। आपके पास लफ्ज़ आ गए हैं, आप उनको मीनिंग आ गया है, तो फिर आप उसकी अदायगी भी करते हैं। एंड देन मोटिवेशन। Motivation. What do we mean by motivation? How does reading give you motivation? Reading gives you motivation by allowing you to move further into the language or further into whatever subject you are reading about. जब आप किसी एक चीज़ को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक किताब को पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें अगर वो सब्जेक्ट पसंद आता है या हमें वो टॉपिक पसंद आता है, तो हमारा दिल करता है हम इसके मुतालिक और पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, again I'll give my own example. At one time I was very much interested in reading historical fiction. सो वो ऐसा, वो एक काइंड ऑफ आपको एडिक्शन सी हो गई थी कि जहाँ आप जैसा आई वाज रीडिंग अबाउट मुस्लिम हीरोज, सो आप डिफरेंट मुस्लिम हिस्ट्री में जो डिफरेंट आपके हीरोज हैं, जो डिफरेंट आपके खालिद बिन ज़ियाद, आई थिंक तारिक बिन ज़ियाद है, और दूसरे वाले कासिम, I'm sorry, at this moment I'm a little not, that was a very long time when I was reading this fiction. But if you get my point, is that कि आप एक हीरो के मुतालिक पढ़ते हैं तो आप एक दूसरे के मुतालिक पढ़ते हैं. So it's kind of a motivates you to move further into that subject. This is true of any subject. If it is true of history, it is true of language, it is true about any. आपको एक दफा वो एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग बन जाती है, एक के बाद दूसरा एक लड़ी पुरोई जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं. So this is what, yes, I'm talking about Naseem Jazi's heroes. Yes, I was Mohammed bin Qasim. Thank you very much. मोहम्मद बिन कासिम है, तारिक बिन ज़ियाद है, और भी हमारे जो हीरोज हैं आजकल, सलाउद्दीन अय्यूबी. हाँ, इंटरेस्टिंग. आई थिंक आई वुड लाइक टू योर कमेंट ऑन दैट. Salahuddin Ayyubi, I mean, for me, I have read about Salahuddin Ayyubi, and I've read about him in as a historical figure, and I've read books about him. And now there is this play or this drama that is on the television. How do you find? Do you find that you are more interested in it? Like, I'll give my example again. That I'm not very happy. I do see that drama a little bit, and then I just switch off my television, because जो मेरी imagination में वो character है, जो मेरी imagination में वो जो hero है, वो कमाल है. वो तो एक काइंड ऑफ वो जो मेरे 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 क्रिएटिव, मेरे तखय्युल में जो एक किरदार वो बना हुआ है, वो किसी तरह भी कोई भी एक्टर हो या डायरेक्टर हो, आई थिंक वो उसको उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकता. इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई बहुत फेवरेट किताब है और उसकी फिल्म बनाई गई है या ड्रामा बनाया गया है, तो आप मत देखिए, क्योंकि आप ज़रूर डिसअपॉइंट होंगे. बेहतर ये होता है कि आप मूवी या ड्रामा पहले देख लें, उसके बाद वो किताब पढ़ें, तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता है. यस, इर्तुगरुल, हाँ, ऑफ कोर्स, वो भी एक बड़ा फेमस प्ले रहा है. अगर इर्तुगरुल का मज़े की बात यह है कि बिकॉज आई हैड नॉट रेड अबाउट दैट कैरेक्टर before watching the drama, so kind of I enjoyed that more, and I was able to enjoy it more, and I was more into the character. Baad mein I became interested and I read
books on that character, and I got some background knowledge about it. So again, वही चीज motivation आ गई कि you get interested in something and then you find the time to read some book. Books आपको वो quality देती हैं रीडिंग आपकी, वही जो अभी पहले जो बात हुई थी, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी क्रिएटिव जो आपकी क्रिएटिविटी है आपके दिमाग को, उसको एक्टिवेट कर देती है और उसकी वजह से आप ज्यादा, यानी आपकी तखय्युल में जो चीज बनती है वो बात वो नहीं होती जो असल असल से भी आप बढ़ के जब चले जाते हैं. Yes, Gone with the Wind. I still remember reading Gone with the Wind in one session. It took me a whole night, but I did read it, and I watched the movie afterwards, and I think I didn't enjoy the movie. जितना लोगों ने कहा उतनी मैंने enjoy नहीं की, क्योंकि मेरे तखय्युल में जो स्कारलेट का जो कैरेक्टर था या रेड बटलर का कैरेक्टर था वो सब कुछ और था. But anyway, let's move. So reading is multifaceted process involving word recognition, comprehension, fluency, and motivation. All right. Now, I think we are taking, I'm taking a lot of time, but I think I enjoy this talk with you. Can we go on to the next slide, please? Yes. Communication skills. Reading improves your vocabulary, develops your communication skills. Now, this is very important. Again, this is a kind of enhancing what has been said before. कि आपकी रीडिंग जो है वो जहाँ आपको वर्ड रिकग्निशन कॉम्प्रिहेंशन देती है, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट बेटर, क्योंकि आपके पास लफ्ज़ है ना, आप उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास लफ्ज़ नहीं होंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप तो म्यूट हो जाएंगे, आप नहीं बात कर सकेंगे सही. तो उसको, उस बात को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लफ्ज़ हो, और वो लफ्ज़ आपको, या तो आप उस जगह रहते हो जहाँ वो ज़ुबान बोली जा रही है, फिर तो ठीक है, आपको इर्द गिर्द माहौल से, आपकी इन्वायरमेंट से वो लफ्ज़ मिल जाएंगे. अगर आप वहाँ नहीं रहते तो फिर आपको वो लफ्ज़ जो है आपको रीडिंग से, रीडिंग इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट those words, where you can get the vocabulary, where you can get the bricks to build the language wall. All right, now, yes, it does. Yeah, very true, of course. All right, can we go on? Increases your creativity, yes, of course. Reading increases your creativity. Can we go on to the next slide, please? All right, ये जो मैंने अभी बात की है, ये जो अभी मैं थिंक पिछले आधे घंटे से मैं बात कर रही हूँ, ये दिस इज, ये आपको पॉइंट वाइज जो है वो बेनिफिट्स, इन्हीं बेनिफिट्स की मैंने बात की. लेट मी जस्ट गो थ्रू देम सो दैट यू it is kind of a summarizes what I've been talking for the last half an hour. Reading exercises the brain. ठीक, मैंने आपको भी कहा कि वो हम डिमेंशिया से बचाएगा. Reading is a form of pre-entertainment. Yes. आपकी इमेजिनेशन जब एक्टिवेट हो जाती है तो आप कहानी कहीं से कहीं आगे जा सकते हो. Reading improves concentration and the ability to focus. Now, we'll come back to this one again. Reading improves writing skills. Yes, of course. If you do not have the bricks, the vocabulary, you won't be able to write anything. Reading improves sleep. Reading increases general knowledge. Reading improves memory. Reading is motivational. Reading reduces stress. And reading develops empathy. Now, the last one. Reading develops empathy. How do you think reading develops empathy? Can someone? Yes, someone said, I strongly agree with all 10 points. I do too. I do too, very much so. Peace of mind, yes, definitely peace of mind. But I would like to empathy. How does it increase empathy? How do we
देखें आप जब कोई चीज पढ़ते हैं और आप उसको पढ़ते वक्त आप उसको एंजॉय करते हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात रह जाती है, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। और अगर अच्छी चीज पढ़ते हैं तो इट डेवलप्स योर कॉन्शियसनेस। इट हेल्प्स, वो जो एक कॉन्शियस डेडनेस है उसको रिड्यूस करती है। सो अगर आप कोई चीज ऐसी पढ़ते हैं और वो आपको आपको महसूस होती है, आप उससे रिलेट करते हैं, तो उसके बाद आप yes, yes, that's a good. Someone has written that you get tears in your eyes. Has that happened to you? Have you sometimes read something and it has brought tears into your eyes? Yes, it does, and it leads to catharsis. Yes, it reduces stress. जो number हमारा 9 जो है, आपके catharsis होता है। देखिए, एक होता है जब हमें एहसास, इस चीज का एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि सिर्फ ये हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये बहुत से और लोगों के साथ भी हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। आप समझते हैं, अच्छा ये एक I'm going to use a very old example कि सस्सा सब भी एक जैसी होती है। तो ये मेरी सास ही ऐसी नहीं है, सभी की सासें ऐसी होती है, ये या सभी की बहुएं ऐसी हो सकती है। तो ये चीज जो है, ये जब आपको होता है, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, आई मीन ये एक काइंड ऑफ फिक्शनल दोनों कैरेक्टर्स हैं, मैं उस तरह बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियलिटी एट ऑल। सो ये सेंस जो है ना, ये आपको एक फेलो फीलिंग जो है, एम्पैथी आप जो है वो आपको स्ट्रेस आपकी करते हैं, रिड्यूस करती है। अच्छा, एक ये नंबर आई थिंक 6 है, ये 6 या 7 ये है, रीडिंग इम्प्रूव्स मेमोरी। मुझे याद है पहले मैंने शुरू में ये बात की थी कि हमें स्कूल में ये होता था कि आप ये शेर, इस लफ्ज से जुड़े हुए शेर याद करके आओ, और वो हम याद करके आते थे, और वो फिर हम उनको रिसाइट करते थे क्लास के अंदर। उससे एक मेमोराइजेशन एक तो होती है ना, जो हम रट्टा जिसे हम कहते हैं, रट्टा लगाना कुछ और होता है, वो मेमोराइजेशन करनी और होती है। उस मेमोराइजेशन में आपको, या ये है कि कोई डायलॉग्स होते हैं, जब हम क्लासरूम्स में अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप ये एक रोल प्ले करो, वो हम जो उनको देते हैं, वो जो है ना, उसमें एक क्रिएटिविटी का जो एक एस्पेक्ट है वो भी आ जाता है। और वो क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट जो है, वो जब वो उस रीडिंग में दाखिल होता है, तो वो सिर्फ एक आई मीन एक मेमोराइजेशन नहीं रह जाती, वो एक हमारे लिए एक पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, एक मेंटल, एक क्रिएटिव एक्सरसाइज हो जाती है। सो वो रीडिंग जो है, वो मेमोराइजेशन जो है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से जो हमारी एकेडमीज में रट्टा क्वेश्चन आंसर्स का रट्टा होता है, या कुछ हद तक हमारे कॉलेजेस में भी होता है, जो वो एक अलग चीज है। So there is, one has to differentiate between um, that memorization of something creative, and memorization for just remembering something that is to be forgotten after 6 months. That is the difference. जब हम किसी शेर, अच्छे शेर को याद करते हैं, जैसे हमें याद है, हमें इकबाल के शेर याद कराए जाते थे, या हमें हाली के शेर याद कराए जाते थे, सो हमें जब वो याद कराए जाते थे, तो हमें ये कह के नहीं याद कराया जाता था कि बस ये इम्तिहान तक याद कर, नहीं, वो हम दे बिकेम पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, और वो फिर एक क्रिएटिव प्रोसेस बन गया। मगर यहाँ पे जब ये जो एकेडमीज का या जो क्वेश्चन आंसर्स का रट्टा लगाना जो है, दिस इज डिफरेंट, दिस डज नॉट क्रिएट, बिकॉज whoever the student जब इसको कर रहा होता है, तो उसे पता होता है कि ये तो मैंने 6 महीने की सिलेबस याद करना है, उसके बाद फिर मुझे कुछ और याद करना है, तो इसको भूलूंगा तो फिर अगला याद।
सो वो आपकी कॉन्शियसनेस में या आपकी क्रिएटिव माइंड में वो उसका कोई हिस्सेदारी नहीं थी. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन. Of course, now reading helps you to control thoughts and increases patience. Yes. How do you think it helps to control your thoughts? I think I will come to the number three. जो है reading improves concentration and ability to focus. ये controls your thought. I think यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है कि जब कोई चीज आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कोई चीज आपको पसंद आती है तो आप उसे गौर से पढ़ते हैं, आप उसको डेप्थ में पढ़ते हैं. और जब आप डेप्थ में पढ़ते हैं तो वो चीज जो है वो आपको आप दो काम कर रहे होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं और आप उस चीज को सोच भी रहे होते हैं. सो this gives you a good benefit. It gives you, I mean, it gives you an excellent benefit for that. I think I'll leave it here. I would like to continue with something else before I go on to my slides again. Um, यहाँ पे I mean I think because of the constraint of time, बाकी slides you can go through yourselves और मेरे पास अगर time हुआ so I can go through them with you. But I would like you to come back to the question that I put in the very beginning of my session, and that was कि how can we help. Benefits तो हमने discuss कर लिए, इन benefits का हमें पता है, मगर how can we bring these benefits to our students? What can we do in a classroom as a teacher so that मेरा student दोबारा पढ़ने की तरफ माइल हो और सिर्फ रट्टा लगाने की तरफ माइल ना हो, सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ना रहे, जबकि उसको एक पढ़ने से लगाव पैदा हो. So इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए I have a question here, and the question is, do you give extra reading material to your class? आप हैंडआउट्स का आजकल ज़माना है, हैंडआउट्स तो हम दे देते हैं, मगर हैंडआउट्स जो हैं अच्छा someone has written कि उन्हें किताबों की खुशबू जो कागज़ है उसकी खुशबू पसंद है. ना सीरियसली, अगर आप नई किताब खरीदें और उसको आप खोलें तो उसमें से खुशबू आती है, किताब की एक जो सफ़ा है उसकी खुशबू अपनी होती है. खैर anyway, let's come back to my question. Do you give extra reading material to your class? पुरानी से भी आती है, हाँ बिल्कुल आती है. अगर आप किताब संभाल के रखें और उसको आप आई मीन हवा लगाते रहे तो डेफिनेटली वो रहती है. Alright. Someone has written yes, they give extra reading material. What kind of an extra reading material do you? These questions I would like you to keep in mind when we have our question answer session. I would like you to answer this question too. All right, let me continue. Now, why do we need to give extra reading material to our class, and what kind of reading books needs to be suggested? अब आपने वही बात कि आपने अपने रीडिंग मटेरियल तो अपने स्टूडेंट को सजेस्ट कर दिया, मगर do you make sure कि they read it? Do you talk about it when they come to like समर हॉलीडेज हैं, समर हॉलीडेज में आप उनको रीडिंग मटेरियल असाइन कर सकते हैं. तो when they come back from their summer holidays, what do you do about it then? Do you talk about it? Do you take one lesson or two lessons or 10 minutes out of your lesson to discuss the reading material that you gave to them? Or do you assign them, let's say, some assignment? No summer vacations now. Yes, second semester पढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो तो summer vacations पे चला जाता है. Yes, very true. But still, लोड थोड़ा सा कम हो जाता है स्टूडेंट पे भी और टीचर पे भी. हाँ, थोड़ा सा आसानी हो जाती है. सो इसमें आप थोड़ा सा उन्हें एक्स्ट्रा टाइम खुद को भी दे सकते हैं और उनको भी दे सकते हैं, जिसमें आप उन्हें रीडिंग मटेरियल दे सकते हैं. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज आई वुड लाइक टू डिस्कस.
रीडिंग मटेरियल आप असाइन कर दिया, अब आप उस रीडिंग मटेरियल को किस तरह स्टूडेंट को आपने अगर स्लाइड आई एम सॉरी स्लाइड्स हैं आपको, वो आई थिंक ये मेरी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं ये आपको शेयर भी हो जाएंगी, सो यू शुड नॉट बी वेरी एंशियस अबाउट इट, मिल जाएंगे आपको, आप फिक्र ना करें। अगर अभी नहीं तो आपको बाद में मैं उनसे कहूँगी आपको जो ग्रुप में है वो सेंड कर दें। सो bus session after reading the article, yes, that's a good, nice. I have been talking about books, but I have not talked about articles, क्योंकि अब ज़माना आर्टिकल का है, बुक्स का नहीं है। lot of different articles are available on the net. Books are available too, but हमारा स्टूडेंट जो है या हमारा टीचर जो है जो एक्स्ट्रा रीडिंग आमतौर पर असाइन करता है वो आर्टिकल्स के मुतालिक होती हैं, आर्टिकल्स दिए जाते हैं पढ़ने को, जो मैंने पहले बात की थी हैंडआउट्स का। बुक्स इतनी असाइन नहीं होती ना। यहाँ पे I would like to take a little bit time out and discuss the difference between an article and a book. What is the difference between article जो है ना, that is of what 2 or 3 pages. मेरी आवाज नहीं आ रही, I'm sorry. I'm sorry. I will try to speak louder. Should I speak? आवाज आ रही है मैम? आ रही है, क्योंकि मुझे अभी किसी ने लिखा है उसमें कि जी आवाज नहीं आ रही रिसोर्स पर्सन की, इसलिए आई वाज जस्ट, अगर ना आते तो मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर देता मैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो वो यहाँ पे आर्टिकल और बुक्स में क्या फर्क है? आर्टिकल जो है वो आपको एक हद तक इंफॉर्मेशन देता है और एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है। जो किताब है ऑन द अदर हैंड गिव्स यू अ मोर in depth knowledge and allows you to think, allows you to engage with the subject that you're reading about in a book, which an article sometimes does not allow you, because article में depth नहीं होती, जो comprehensive, yes, thank you very much, comprehensive information नहीं होती जो एक किताब में होती। I think I will use another word, not just a it's not about comprehension, but rather it's about dimensions. किताब आपको आपके लिए सवाल उठाती है जो आर्टिकल शायद नहीं उठाता। आर्टिकल एक सवाल का जवाब जरूर बन सकता है, वो आपको जवाब जरूर दे सकता है, मगर किताब जो है वो सवाल उठाती है, वो सवाल आपके दिमाग में क्रिएट करती है, एक जुस्तजू पैदा करती है जिसके लिए आप एक और किताब पढ़ते हो या आप किसी और तरफ निकल जाते हो, एक यानी आपको एक और रास्ता दिखाती है जिसकी तरफ हम निकल सकते हैं। Yes, but let's come back. I think I will like to talk about some strategies that teachers can give to their students in the classroom so that they start reading again. So uske liye I have a little material prepared for you all. वो material I would just like to go through. एक तो ये है कि अगर आप कोई आर्टिकल दे रहे हैं, यू कैन बिगिन विद एन आर्टिकल। आर्टिकल्स देना हैंडआउट्स के तौर पे देना या उन्हें पॉइंट आउट करना कि वो है कहाँ है, वो आप यू कैन बिगिन विद विद दैट। अगर आप उनको पढ़ने के लिए देते हैं तो उन्हें एक खास वक्त भी दें पढ़ने के लिए। खास वक्त का मकसद से मेरी मुराद क्या है? हम लोग कई दफा अपने खड़े होकर क्लास में कह देते हैं कि ये आप पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद हम पीछे हट जाते हैं, ये नहीं कहते हम उनको, हमें स्पेसिफाई करना चाहिए टाइम को एग्जैक्टली आप ये हम एक दिन के लिए आप अपने आर्टिकल की अपनी किताब की उस वसत के हिसाब से आप कह सकते कल ये डिस्कस करेंगे या हम 3 दिन के बाद ये डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू गिव देम अ प्रॉपर टाइम लिमिट in which they need to read it, and then they can just you can, because
एम्पल टाइम, यस एम्पल टाइम आप जरूर दें, मगर स्पेसिफाइड टाइम दें, सो दैट एक काइंड ऑफ एक मोटिवेशन क्रिएट हो कि जी ये खत्म करना है या हमने पढ़ना है। ये नहीं है कि जी अच्छा कल पढ़ लेंगे, स्टूडेंट के दिमाग में ये बात ना है, या ये अगले हफ्ते पढ़ लेंगे। इस तरह नहीं, उन्हें जरा उन्हें टाइम लिमिट एंड सही टाइम उन्हें इतना दें कि उनको पढ़ सके अच्छी तरह, मगर उनको वो टाइम दे, टाइम लिमिट जरूर दें। देन एक दूसरी बात जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और हम टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि हम स्पीड रीडिंग, एक रीडिंग के अंदर एक कई दफ़ा आता है स्पीड रीडिंग भी लफ्ज़ आ जाता है। स्पीड रीडिंग और पेसिंग, स्पीड रीडिंग से हमारा क्या मुराद है, ये स्पीड रीडिंग क्या होता है, या उससे क्या हम कर सकते हैं, या हम उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका क्या होता है। स्पीड रीडिंग का तरीका जो जो मैंने देखा और जो बड़ी साइंटिफिकली लोगों ने उसको किया है वो ये है कि आप 5 मिनट अपने आप को असाइन करते हैं, और उसमें आपको नॉवल हो सकता है या आर्टिकल हो सकता है, उसको आप पढ़ते हैं और उसमें आप देखते जाते हैं कि आपने कितनी देर में वो 5 मिनट 5 मिनट में आपने कितना पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ा, 2 पैराग्राफ पढ़े, 3 पैराग्राफ पढ़े, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट में आपने 4 पैराग्राफ पढ़े, फिर पर आर आपके 48 हो गए, और इसका मतलब आपने अगर 500 बुक्स पेजेस की किताब पढ़नी है तो आप 10 घंटे 30 मिनट में पढ़ लें। सो ये आपके, या आपने इतने पेजेस की जो है इतने आवर्स में पढ़े। सो ये आप अपनी स्पीड और अपनी पेसिंग इस तरह डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि जी ये किताब मैं इतने घंटों में पढ़ रही हूँ, या मुझे इतने घंटे लगेंगे। ऑफ कोर्स ये इतना साइंटिफिकली नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन कई दफ़ा ज़्यादा होती है, कई दफ़ा कम होती है, या हमारा इंटरेस्ट उससे होता है, मगर ये एक एवरेज आप इस तरह निकाल सकते हैं। देन दूसरी एक तो पेसिंग का, आप यू कैन टीच योर स्टूडेंट्स टू पेस देमसेल्व्स, दैट उससे उनको पता चल जाएगा कितने वक्त में ये एक आर्टिकल या बुक वो पढ़ सकते हैं और कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपको एक चीज को एक दफा नहीं, आपको एक दफा ज्यादा भी पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू, अब ये हम आते हैं टेक्स्ट बुक्स की तरफ आ गए कि तो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना हमें अपने स्टूडेंट को सिखाना है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट अब टेक्स्ट बुक से हट के गाइड्स पर आ गया है, और गाइड इज लाइक अ समरी, एक आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जांपल, बट जिस तरह हम अपने बेबीज को जो है गाजर की और दूसरी सब्जियों की एक प्यूरी बना कर देते हैं और हम वो उसके मुंह में डाल देते हैं, हमारे गाइड बुक यही है। जो हमारा नॉलेज है वो उसकी प्यूरी बना के हमारे स्टूडेंट को दे देता है। और प्यूरी से क्या होता है कि वो कभी भी उसके दांत तो नहीं उग सकते, वो तो हमेशा वो उसको आदत पड़ जाती है निगलने की स्टूडेंट को, और वो जब उसको अपने दांत इस्तेमाल करने पड़ते हैं किसी चीज को सीखने के लिए तो फिर वो तंग होता है। सो इसलिए हमें जो है स्टूडेंट है उसको पढ़ने की आदत डालना टेक्स्ट बुक की या स्पून फीडिंग आदत भी डालनी है, और उनको सिखाना भी है कि किस तरह वो इस स्पून फीडिंग और जिस तरह प्यूरी जो है ये गाइड बुक की, उससे वो किस तरह दूर जा सकते हैं। Now, how do we give what strategies, reading strategies, or what reading उनको हम ये सिखा सकते हैं इसमें। उसका जो है उसमें एक दो तीन चीजें हैं। You can get a lot of articles about this on the net, so if you are interested in it, you can read in detail. I don't have the time to go into details about that, but I will just pick, and I will just for your knowledge and for your information I can just talk about. जब आप किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो आप उसके इन्फरिंग एंड इम्प्लाइंग उसमें क्या कहा जा रहा है, किस तरह कहा जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर लैंग्वेज, उसकी वोकैबुलरी एंड इवेल्युएटिंग, ये सब चीज़ें आप डिफरेंट तरीकों से
आप सीख सकते हैं और आप रीडिंग के दौरान करते हैं। नाउ Excuse me, इवैल्यूएटिंग। मैम। जी जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, आपसे पूछना था आप कौन सी स्लाइड पे हैं? मैं किसी स्लाइड पे नहीं हूँ। आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम द स्लाइड, आई नेवर टीच फ्रॉम द स्लाइड। स्लाइड्स तो मैं ओके सिर्फ मैम। देती हूँ, हाँ, स्लाइड्स तो मैं सिर्फ देती हूँ टू काइंड ऑफ समराइजिंग व्हाट आई हैव, आई मीन व्हाट आई टॉक अबाउट इन माय, इसलिए प्लीज डोंट स्लाइड्स की तरफ मत देखिए। मैं अपने ठीक पार्टिसिपेंट है, से ओके भी, मैम, आप कंटिन्यू करें। हाँ, आई एम जस्ट, आई मेरे अपना है जो मैं खुद अपने से बात करती हूँ। जो बाद में अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन, वही जो मैं कह रही हूँ, इसलिए आप अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई इतनी मुश्किल इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, so when we are reading to learn, and now this I'm talking about textbook, I'm not talking about fiction reading now. Fiction reading की हमने पहले बात कर ली, वो जो हमने benefits की बात कर ली थी कि जी entertainment है, motivation है, empathy है, वो सारी fiction reading या extra reading थी। अब we are coming to the reading of the primary text. प्राइमरी टेक्स्ट जो क्लासरूम में आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, उसको आप किस तरह गाइड बुक से अपने स्टूडेंट को दूर लेके जा सकते हैं और उसको किस तरह इंटरेस्टेड कर सकते हैं कि वो प्राइमरी टेक्स्ट की तरफ आए और प्राइमरी टेक्स्ट को वो पढ़े। उसके लिए उसमें आपको रीडिंग के लिए आपको यस यू हैव टू रीड एंड रिव्यू एंड यू हैव टू, वो भी स्लाइड मौजूद है, बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मगर इसकी डिस्कशन में मैं अगर जाती हूँ तो सबसे पहले उसको इन्फर एंड इम्प्लाई, तो जो टेक्स्ट है उससे वो क्या सीख सकता है, क्या इन्फर कर सकता है बिसाइड दैट, वो जो एक घिसे पिटे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के अलावा। तो इस चीज की तरफ जो है वो हमारे जो मॉडर्न टीचर है उसको लेके जाना है स्टूडेंट को। सॉरी, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। थैंक यू। फिर इससे जब वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है तो फिर उसके बाद वो उसकी जो नॉलेज है उसकी तरफ से लेकर आए। तो पहले आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। हाईलाइट इस तरह करना, वट एवर सब्जेक्ट यू आर टीचिंग अ लैंग्वेज और यू आर टीचिंग अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, इट डजंट मैटर। सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है, उसकी आपको उसमें उस स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस उसकी ऐसा दिलाना है, उसमें इन्फरिंग, उससे वो क्या सीख सकता है, इन्फर कर सकता है, और वो टेक्स्ट उसको क्या इम्प्लाई करता है, उसकी तरफ लेके जाए। उसके बाद उससे, उस टेक्स्ट से उसे जो नॉलेज हासिल हो सकती है वो उसका, एंड देन इवेलुएटिंग ऑफ कोर्स इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हाईलाइटिंग है। Unfortunately, and that I have realized in my own teaching career, कि हमारा जो उस्ताद है, अब वो जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसकी तरफ सबसे पहले जाता है और वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करता है। यानी हम पहले से ही पिक एंड चूज कर लेते हैं कि हमने ये जो हमारे 3 महीने हैं या 4 महीने हैं, चाहे वो बीएस की क्लास है चाहे वो एफए की क्लास है, उसमें हमने इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको एक साइड पर करना। Now here we have to, I mean, I think I would like and I would request my fellow participants and my colleagues to please not to do that. आपके लिए हर चीज स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि जो आज आप समझ रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि ये उसको बोर्ड के इम्तिहान देने के लिए या उसको यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने के लिए ये तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये तो उसको पढ़ना जरूरी है। हो सकता है कुछ और चीजें आगे उसके करियर में इम्पोर्टेंट हो जो अब नहीं इम्पोर्टेंट हो, सो उसको, या उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके उसके अंदर, उसका वो मोटिवेट हो सके आगे और कुछ पढ़ने के लिए। इसलिए आप सब चीजों में, सब चीजों के अंदर आप जो सारा टेक्स्ट है उसको खंगालें जरूर, उसको एक दफा उसको गो थ्रू जरूर करें, सो दैट उसकी और उन सब जो है उस टेक्स्ट के अंदर जो इम्प्लाई किया गया है, जो नॉलेज दी गई है, उसको शेयर जरूर करें स्टूडेंट के साथ। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट जो आ जाता है, जो हम उसको है, अब सबसे पहले आप कोई किताब हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो चाहे कोई किताब हो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट उस किताब का पेज है वो है कंटेंट पेज।
जो उसका है, कंटेंट पेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसकी अहमियत का एहसास अपने स्टूडेंट को दिलवाएं, उसको देख के वो किताब जब बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक द सेकेंड हाफ ऑफ माई लेक्चर कम्स इन द यूज ऑफ अ लाइब्रेरी. Do we teach our students to use the library properly? No, not at all. I know the students do not know how to go. They don't know. They are afraid to enter the library. Why? Because उनके लिए तो वो एक एलियन जगह है ना. उनको लगता है कि इस जगह जाके हमें क्या हासिल होगा, या वो ज्यादा से ज्यादा उस वहां पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स जब करना होता है उन्हें और थकान महसूस हो रही होती है, वो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते हैं. मगर जो लाइब्रेरी की असल रूह है, किताब, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता. सो उस चीज की तरफ, उस लाइब्रेरी की तरफ हमें स्टूडेंट को दोबारा लेके जाना है. उसके लिए 2-3 चीजें हमें हाईलाइट करनी है. और सबसे पहले किताब का सही इस्तेमाल हमें सिखाना है अपने अपनी स्टूडेंट को. और किताब का सही इस्तेमाल किस तरह, सबसे पहले तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है ना. इंटरेस्ट किस तरह पैदा करेंगे? सबसे पहले उन्हें बताएं कि वो जो कंटेंट पेज है वो इट्स काइंड ऑफ अ प्रीव्यू. इट्स काइंड ऑफ जैसा नया ड्रामा टीवी पे आता है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है. तो वो प्रीव्यू पेज जो है उस किताब का ट्रेलर है. उसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है कि इस किताब में क्या हो सकता है, क्या लिखा हुआ हो सकता है. सो आपको एक जो कहते हैं ना, आपको जो चीज खींच के उसको किताब के अंदर आपको लेके जाएगी, वो आपकी वो कंटेंट पेज है. सो यस, अब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं आई है अब. देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन ई लाइब्रेरीज, कि जी ई लाइब्रेरीज होनी चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस होनी चाहिए, उसको जरूर होनी चाहिए. आई टोटली एग्री विद दैट. आई एम इन नो वे नॉट एम्फसाइजिंग दैट. यस, होनी चाहिए, बट देयर इज what is important is कि आपको किताब की तरफ भी लेके जाना है. लाइब्रेरी की असल रूह जो है वो किताब है, और उस किताब की तरफ भी हमें लेके जाना है अपने स्टूडेंट को. उनको अहमियत दिला, उनको उस चीज की अहमियत का एहसास दिला. So we need to show them how to scan the title, how to scan all the headings, how to go through the the content page. Then आप जब वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं तो किस तरह उसको किस तरह फुली पढ़ने से पहले जो फिर इंटरेस्ट है उसको उसका. सो दिस, ये जो है ये टेक्निक्स हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग की. स्कैन किस तरह करना है हमने किताब को, स्किम किस तरह करना है, एंड देन इन डेप्थ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग. सो ये 3 जो हैं ये स्ट्रैटेजीज हैं रीडिंग की: स्कैनिंग, स्किमिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग. सो आप पहले स्कैन करते हैं किताब को, आप देखते हैं उसमें क्या क्या है, फिर स्किम करते हैं उसमें से जौन सा आर्टिकल या जौन सा चैप्टर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, आप उसको आप स्किम करते हैं उसमें से, और फिर जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ हम मुझे असल चाहिए, उसकी आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. so, इस तरह एक किताब को किस तरह आप पढ़ सकते हैं, ये भी हमें अपने स्टूडेंट को सिखाना है. ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी, आपको उसका करें. देन you are you can also there is a very old technique. I don't know अगर आपने किया कि नहीं किया. मुझे याद है कि जब एग्जाम्स की तैयारी करनी होती थी तो 2 काम होते थे: पढ़ के लिखो और पढ़ के सुनाओ. ये 2 चीजें कही जाती थी. अगर किसी चीज को याद करना है तो पहले उसे पढ़ो, फिर उसे लिखो, या उसको सुनाओ, और फिर जो लिखा है उसको सुनो. So this is how we were taught to learn for our examinations. जिसके लिए हम तैयारी करते थे, अपने नोट्स बनाते थे. So this is something we need. Do you think I need to go, because I just have half an hour left, and I would like
कि हमारा वो जो इंटरैक्टिव सेशन है वो भी हो. So my suggestion is either we can go on directly go into our interactive suggestion or session, sorry, or we can go through the slides quickly. मगर slides का ये है कि आपने you can also go through them और आपके they are self-explanatory हैं ज़्यादातर, so you can go through them and they are just for your benefit for you to go to बाद में आपको तैयारी करनी होगी जब एग्जाम्स की तो आपको थोड़ी सी help मिल जाएगी उससे. Should we go into our I think I would like to hear your views. I always love to hear your views. मेरे लिए that is more interesting. So I would like to do that. So I will request, please, can you unmute my colleagues' mics? आपको questions मैंने पहले से दे दिए थे, so उन questions Okay, को ma'am. हाँ आप इनके कर दीजिए. मैं उसके पहले मैं जो questions मेरे थे मैं उनको जरा repeat कर देती हूँ so that आपको जब आपने क्या कहना है वो भी आपको पता हो. मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मेरे 3 सवाल हैं. एक सवाल मेरा ये था, how do you encourage your students to read other books beside the textbook? Give 5 strategies and suggest 5 ways of encouraging students to enter the library and use it. So I would like to hear your views on this question. Also, I would like to hear your view on another question that I put through while I was discussing my session. I'm sorry, I've lost my page, but I will get to that page soon. Wait. I wrote it down. अच्छा ये भी एक है, मुझे याद है कि हम जब किताब पढ़ते थे तो हम नोट्स बनाते थे, मार्जिन्स में लिखते थे. Now I don't see students writing in the margins of the textbooks anymore. What a shame. Anyway, Haji, please, can you unmute, please? And I would like to hear your views, please. Ji, who would like to talk, please? Who would like to talk? आपने अनम्यूट कर दिया. मैं पहला क्वेश्चन फिर रिपीट कर. फातिमा, आपका जी माइक जी 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 अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? I'm fine. आपने पहचाना मुझे? जी बिल्कुल मैंने पहचाना. हाँ नहीं जी बिल्कुल आपने. Nice hearing you. It was a comprehensive lecture, discussion rather. और ये एक बहुत बड़ी इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स में है ना, और वो यही है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. और इसमें हम तो टेक्स्ट बुक्स भी कहते हैं, बिकॉज मैं भी लिटरेचर की एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो मुझे भी यही प्रॉब्लम आती है क्लास में कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट पूरा नहीं पढ़ते हैं. सो वी नीड टू इनकलकेट इन देम सम इंटरेस्ट. तो मैं तो बाज दफा ऐसे करती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ कि फाइन, मैं अगर आपको ये प्ले पढ़ा रही हूँ तो जस्ट मेक इट अ स्टोरी, राइट डाउन अ स्टोरी, इसको पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले इसमें क्या है, एंड राइट अ स्टोरी एंड देन वी विल डिस्कस दैट स्टोरी इन द क्लास में भी आप एक स्टोरी कर सकते हैं. फिर जो है ऑफ कोर्स शॉर्ट क्वेश्चंस टू जस्ट कीप देम ऑन टो कि आप पर जो है अपना कंसंट्रेशन करें. तो टेक्स्ट बुक्स इनके पास नहीं होती, बट ई बुक्स होती हैं. अब ज्यादातर ई बुक से पढ़ा जाता है, तो वो मैं तो अलाउ करती हूँ अपनी क्लास में कि जी ठीक है, आप अपने मोबाइल्स खोलिए और अपना टेक्स्ट वहां से पढ़ लीजिए. तो हमें किताब अच्छी लगती है हाथ में पकड़नी, इन बच्चों को नहीं लगती है. दे डोंट टेक नोट्स. आई आस्क देम कि कुछ ना कुछ लिखा जरूर करो जो हम बोल रहे हैं, कम से कम उसी में से. तो लेकिन बच्चों को जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर देते हैं, लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर एक शॉर्ट स्टोरी है और उसको चलो डेवलप इट इनटू अ प्ले. आई रिमेम्बर एक माय कोलीग, उन्होंने अपनी क्लास में ये चीज की. मैंने अपनी क्लास में बच्चों को कहा चलो एनैक्ट करो, एक सीन को एनैक्ट करो, सो दैट तुम सीन को पढ़ोगे एक प्ले के, तो उसके बीच में से तुम्हें पता चलेगा कि क्या कॉन्वर्सेशन कैसे हो रही है, डायलॉग कैसे डेवलप हो रहा है. सो जो है ये हमें एक, मुझे लग रहा है एज लैंग्वेज टीचर्स हमारे पास ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग वो दे गो फॉर क्विक थिंग्स, नोट्स और ये चीजें उनको मिल जाएं. हालांकि हमारे कोर्सेज जो हैं दे क्लेम कि वो जो हैं, और
इस तरह नोट्स ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन इवन देन तो हम मेरी तो कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं क्लास में, और फिर अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो से क्लासिक जो है आज कोई नॉवल पढ़ा है तो जो है डिकन्सन को पढ़ा है तो उसको साथ बता दिया भी तुम जो है जेन ऑस्टिन का भी पढ़ लो, एक अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, या जेन ऑस्टिन पढ़ लिया तो जो है एक और नॉवल कोई बताया सांस साहब इसको पढ़ो। बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लेते हैं कुछ नहीं भी लेते, बट रीडिंग ऑन दी होल मुझे लगता है इवन हम लोग भी अब उस तरह कम करते हैं। मुझे लगता है कि अब बच्चे ज्यादा चूंकि ऑनलाइन उसमें होते हैं, फिर उनके अडेप्टेशंस को वो ज्यादा, एक चीज जो अडेप्टेड, यहाँ एर्तुगरुल का जिक्र हो रहा था, यहाँ पर अभी सलाहुद्दीन अयूबी लगा हुआ है टीवी के ऊपर, अब उसकी बुक्स मुझे लगता है पढ़ना बच्चे शौक से पढ़ेंगे। बच्चे पहले शो देखते हैं और फिर शौक से रीडिंग करते हैं, तो हमें वो भी इनकरेज करनी चाहिए, हमें उनके साथ पेस जो है लेके चलनी चाहिए। Thank you. Thank you so much. Thank you. जी, I would request Mr. Abdul Aziz, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने भी कहा था Mr. Abdul Aziz तागा साहब, नहीं? अच्छा ठीक कर दिया माइक ऑफ। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। जी, अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ जी। जी जी आप किस मैडम, तरह इंकरेज करते हैं अपनी क्लास के अंदर? जी मेरा चूंकि सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो बिहेवियरल साइंस है, तो हम तो मैं एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि अब एआई का वर्ल्ड है ये, और हम 80s और 90s की जो मेथोडोलॉजी है वो हम सोचते हैं कि 2024 के बच्चों के ज़हनों में डालें। तो मुझे तो लग रहा है कि जो कि बिल गेट्स ने भी ये कहा है कि इन 2040 और 50 देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल बुक ऑन द अर्थ, एवरीथिंग विल बी डिजिटाइज्ड। क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी चीज़ों को इतना आसान कर रही है, और टेक्नोलॉजी जो है हर किसी के दरवाजे पर आ चुकी है, और हम में से जो लोग इसको अपने आप को अडेप्ट करके मॉडिफाई करके एडवांसमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, तो वो इस पुरानी चीज़ों को ज़रा मतलब ड्रम बीटिंग कम करते हैं, और वो इसी के अंदर रहते हुए जो है वो चीज़ों को देख रही हैं। और मैं यहाँ बस ये गुजारिश ये करना चाहूँगा कि देखें मेरे पास अगर 10th क्लास का बच्चा है तो उसने 2030 में जॉब मार्केट में एंटर होना है, तो आई शुड विजुअलाइज कि 2030 की दुनिया कैसी होगी। मेरा ख्याल है कि जो मैंने किसी टीचर से सीखा तो उसने कहा कि फ्यूचर जो है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तक एक्सेस और उसकी मैनेजमेंट का रह जाएगा। ये हाथ से लिखना और ये फिर खुद से ड्राफ्ट करना, यकीन कीजिए बात दुरुस्त है, मैंने उसके दिन के बाद कुछ सर्च किया, ये आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। एंड्रॉयड पे आईओएस पे इतनी ऐप्स हैं जहाँ पर परफेक्ट लेटर ड्राफ्ट हुए पड़े हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस के हवाले से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बीसियों हज़ारों किस्म के सब्जेक्ट्स के ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरफ दुनिया जा रही है और ये चली गई है और आगे भी जाएगी 6-8 साल के बाद, तो शायद ये टॉपिक्स जो है ना ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे आज हम टाइपराइटर पे बात करें, तो टाइपराइटर शायद हम में से अब कोई किसी को याद तो होगा, लेकिन हमने देखा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो कमिंग ईरा है अगले 5 से 10 साल का, देखें आप बीबीसी चेक कर लें, आप सीएनएन देख लें, उस पर भी एआई के इम्प्लीकेशंस पे बात हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये डैमेजिंग कहाँ है और ये पॉजिटिव कहाँ है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उस हवाले से देख के बच्चों को रीडिंग की तरफ आप लेकर जाएं, और जितनी रिक्वायर्ड है। थैंक यू। Thank you very much. Very good suggestions. I would like, all right, Madam Atiya Gilani, would you like to speak? आपने किया था। यस मैम, आपका माइक ऑफ किया है। सबसे मैं आपसे पहले क्वेश्चन। हाँ जी जी। Atiya, I would like someone to say a little about library now. How can we encourage students to जी, go to the मैम। library? इनफैक्ट मेरा सेकंड हाथ था जो मैंने रेज किया, हाँ तो जी। मुझसे पहले डॉक्टर आफा उस्मानी ने रेज किया हुआ है, वो लिख भी रही हैं, बट हाँ एज जी, मेरा जी, माइक ओपन हो गया तो मैं जवाब दे देती हूँ कि जी, मैडम एक तो सब दोनों चीजों पे बात करूंगी, और एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपके सामने लाना चाहूंगी कि हम जी, मुसलसल जरूर। बात करें कि हमारे आज के बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ रहे, या बुक्स की तरफ उस तरह से नहीं है, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, या वो कोई हिस्टोरियन ड्रामा देख के जो है आजकल अगर बच्चों की हिस्ट्री की बुक्स देखें तो आई थिंक जो हम मिडिल लेवल के ऊपर जो लोग वो चीजें पढ़ के आ रहे हैं, वो सिविलाइजेशंस पढ़ के आ रहे हैं,
जो कि शायद मुझे जाके मास्टर्स लेवल पे या लेटर ऑन मुझे अपनी लाइफ में पढ़ने का दिल किया। तो वो बड़े अपडेटेड है हिस्ट्री के बारे में, उन्हें मुकम्मल नॉलेज है और इंटरनेशनल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज। दूसरी बात ये कि वही बात मैं अब्दुल अजीज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे ट्रेंड्स चेंज हुए, हमारी हैबिट्स तो वही है। ह्यूमन डिजायर जो हम जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है रीडिंग के हवाले से, वो सेम है। तो वो बच्चे ई बुक्स की सूरत में और या किसी ना किसी तरीके के साथ वो अपने ब्रेन को उस तरीके से चार्ज कर रहे हैं, उस तरीके से उस तरफ को जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे शेक्सपियर जो है अब क्लास 3 का बच्चा भी पढ़ता हुआ नजर आता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। और मुझे अपना याद है कि मैंने जाके कहीं बीएस के अंदर इसको पढ़ा था। और दूसरी बात जो क्लास के अंदर एडिशन की बात है, उसमें अगर एक टीचर खुद किताबें पढ़ने का शौकीन हो ही नहीं सकता कि उसके लेक्चर के अंदर एडिशन ना हो, उसके लेक्चर के अंदर रेफरेंसेस ना हो, वो उस बुक के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ 5 मिनट बात ना कर जाए, या उसके स्टूडेंट्स में उस बुक को पढ़ने का शौक ना पैदा हो जाए कि आखिर वो क्या है जिसका बार बार रेफरेंस आ रहा है। रही बात मैम लाइब्रेरीज की, तो लाइब्रेरी जो है वो एक हमारे अनफॉर्चुनेटली कायदेमंद लाइब्रेरी से बेहतरीन लाइब्रेरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं कोई पाई जाती होगी, लेकिन उसका आप जब जाके देखते हैं नाउ इट हैज बिकम अ हॉन्टेड प्लेस। तो हमने उनको इतना अपडेट नहीं किया, डिजिटल वर्ल्ड ने इतनी तेजी से रिप्लेस किया है इस पेज की दुनिया को, इस सफात की दुनिया को, कि लफ्ज अब भी अपने मानी तलब करते हैं मगर करते डिजिटली है। थैंक यू सो मच। Thank you. Yes, I agree. Digital books and they are very important and they are accessible. सबसे बड़ी बात ये है कि they are accessible. But still, मेरी request फिर भी यही है कि फिर भी आप अगर हम किस तरह students को motivate कर सकते हैं so that they can at least try, उनको कुछ तो किताब के साथ मोहब्बत पैदा हो, कुछ तो वो किताब रहे तो सही। इसलिए आई एम जस्ट इट्स जस्ट माय विश के किताब का कोई ना कोई अहमियत हमारी जिंदगी में, हमारे उस्ताद की जिंदगी में और उसके शागिर्द की जिंदगी में, हमारे स्टूडेंट्स की जिंदगी में रहे। I think I have very little time left, but I can request who would like to go on. Or I think Agla, Madam Kausar, I think would like to speak. आपका हाथ था इसके बाद. Would you like to speak? Atifa, would you like to? All right, Dr. Atifa. Dr. Atifa का खोल दीजिए. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन बोल रहा है? मिसिस कौसर जबीन. जी 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 कौसर जी बताइए. मेरे पास कुछ एक लाइब्रेरी में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला मुझे, जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी बच्चों की लाइब्रेरी है. जो थी तो कुछ, मैं फिजिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. तो हम लोग जो लिटरेचर फिजिक्स में पढ़ाते हैं, डेट इज द ऑल इज द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जो इक्वेशन लिखी गई, जो टेक्स्ट लिखी गई, डेट इज ऑल इम्पोर्टेंट. लेकिन वहां मैंने जो सीखा वो ये था कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स को आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी जो विद इन कॉलेजेस इफेक्टिव हो सकती हैं. ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड है जो फिर मैंने वहां काम किया और इंट्रोड्यूस कराए. उसमें ये था कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेशंस जो इस स्टेज पे बच्चों को चाहिए जब वो कॉलेज में आते हैं, कि जैसे उन्होंने कोई रिसर्च करनी है तो वो लाइब्रेरी में जाते हैं, 100 किताबें निकालते हैं, तो उनमें 100 बुक्स में से हाउ टू सेपरेट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. और इसके बाद जो है लर्निंग जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है. जब आप किसी बुक में जाते हैं आप उसको इमेजिनेट भी कर रहे हैं, उसमें आपके जो है वर्ड्स को भी देख रहे हैं, उन हर वर्ड जो है वो एक हिस्ट्री को कैरी कर रहा है, एक लिटरेचर की सिंबल है, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑथर की स्टेट ऑफ माइंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो डिजिटल वर्ड मर्जी तरक्की कर जाए, हम सिमुलेशन, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, सिमुलेशंस दिखा सकती है डिजिटल वर्ड. लेकिन जो न्यूटन ने सोचा, जो आइंस्टाइन ने सोचा कि सिर्फ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस नहीं है 3 XYZ अनलिमिटेड. तो जिस पे जो है अब हम ये भी कह रहे हैं कि जो है पोर्टल आसमान में खुल रहा है, तो हम अपने कुरान पाक कुछ आयत की तशरीह देने की कोशिश कर रहे हैं. तो आखिर उन लोगों ने सोचा, उसके लिए उन्होंने वर्ड्स को यूज किया, और उन वर्ड्स उनमें से जो कुछ उन्होंने लिखा उस वर्ड ने एक लिटरेचर, एक हिस्ट्री कैरी की, एक मीनिंग्स कैरी की है, एक कल्चर को रिप्रेजेंट किया. तो बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन एनालिसिस और इंफॉर्मेशन एनालिसिस दोनों जरूरी हैं. एक बुक जो है उसको आप कॉलेज की लाइब्रेरीज में हर रोज इतनी हजारों के हिसाब से किताबें हैं, जितनी पुरानी किताब है उतनी ज्यादा उसकी वर्थ है.
तो आप बुक ऑफ द डे अनाउंस कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट बच्चों से ही लिखवा सकते हैं कि उसकी समरी तैयार करे, एक ग्रुप बच्चा जो है वो मेन नोटिस बोर्ड्स पे आ जाए, तो बच्चे फिर उस बुक के पीछे जाते हैं कि आखिर इस बुक में ये हिस्ट्री है, ये व्हाट द बुक इज अबाउट, तो और भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी। फिर स्टैटिक पिक्चर्स जो होती हैं आपकी बुक्स के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी बुक में, कई बुक्स के अंदर लिटरेचर को उन्होंने बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स के साथ सपोर्ट किया होता है, जैसे एलिस इन वंडरलैंड है, तो आप जो है उन पिक्चर्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो बच्चे इन सर्च ऑफ पिक्चर्स आते हैं कि व्हाट इज बिहाइंड द पिक्चर्स। फिर इसके बाद जो है बात जो है वेब ऑफ बुक्स डेवलप कर सकते हैं कि एक आइडिया है स्टूडेंट्स को दिया गया है, उस आइडिया से रिलेटेड जो ऐसे सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है, वो आप अनाउंस कर देते हैं कि ये सिविलाइजेशन ऑफ द वीक है, तो तमाम बच्चे उससे रिलेटेड बुक्स जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं उनको कलेक्ट करें और उसमें देखें कि व्हाट द बुक्स आर अबाउट, किन्होंने लिखी, किसने लिखी, लिखने वाला भी कोई था, कब वो छपी। इवन उससे आप बैक ट्रेस इनटू द हिस्ट्री ट्रैवल करवा सकते हैं बच्चों को कि उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस किस तरह के होते थे, किस तरह की चीजें होती थी। जैसे रिसेंटली मुझे एक मौका मिला एलिस इन वंडरलैंड का, तो उसमें वो बाथ मशीन्स थी, तो उस दौर में बाथ मशीन किस तरह की होती थी, वो बच्चों के लिए, मेरे लिए भी एक लर्निंग का था कि ये क्या है। तो जो है बच्चों के से पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, पोस्टर ऑफ द बुक, के बच्चे बुक्स आप बच्चों को दे दें, वो घरों में ले जाएं, तो पोस्टर आप उस वक्त तक बना ही नहीं सकते जब आप उसका की आइडिया बुक का कैप्चर ना करें। आप जब तक आप पढ़ ना ले, टेक्स्ट ना पढ़ ले। बिल्कुल हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा लाइब्रेरी जो है सबसे साइलेंट कॉर्नर है, जबकि सबसे एक्टिव वो कॉर्नर होना चाहिए था। आप बच्चों को हम कन्विंस कर सकते हैं कि जब वो लिटरेचर को रीड कर रहे हैं तो इवन पार्किंसन की डिजीज नहीं हो सकती उस बंदे को जो फॉरेन लैंग्वेज में लिटरेचर को पढ़ रहा है। उनके आप बड़ी देर तक स्ट्रॉन्ग रहते हैं बुढ़ापे में भी। तो मतलब और दूसरा ये है कि लाइब्रेरीज का इस वक्त जो मर्जिंग मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की इन्होंने बात की है कि मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का दौर है, तो देखें FRBR जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, जो हर लाइब्रेरी का कोर फंक्शन है, जो इसका हमारे यहाँ किसी को पता नहीं। तो वो लाइब्रेरियन जो चुप करके चाय पी के चला जाता है, सॉरी टू से, मैं भी एक प्रोजेक्ट को मैंने हेड किया, मैं भी शायद शुरू में जाके मैं भी यही काम करती थी। तो जो है उसको बड़ा एक्टिव रोल अदा करना है। उसने एक बुक पढ़नी है एलिस इन वंडरलैंड या, तो उसपे उसने कंटिन्यूसली रिसर्च वर्क बच्चों से करवाते रहना है जो लाइब्रेरी को विजिट कर रहे हैं, रेगुलर शेड्यूल में आ रहे हैं, कि इसमें कहाँ ड्रामा बना, कहाँ पे परफॉर्म किया गया, कितने लोगों ने इसको टेक अप किया फर्दर काम के लिए, कितने लोगों ने इसकी पेंटिंग्स बनाई। दिस इज ऑल FBR। और वो फिर मैप्स से बन जाते हैं, मेंटल मैप्स, वो जो है वो डिस्प्ले पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इससे ही इम्प्रेस होते हैं कि दुनिया में आखिर एलिस इन वंडरलैंड पे सबसे ज्यादा काम क्यों हुआ है, लिटरेचर में किसी और नॉवल पे क्यों नहीं हुआ है। तो आई शुड लुक इनसाइड द बुक व्हाट द बुक इज अबाउट। तो ये मेरी थोड़ी सी हम्बल सबमिशन थी कि लाइब्रेरी शुड बी द मोस्ट एक्टिव जो है कॉर्नर ऑफ द कॉलेज, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जबकि हम कर सकते हैं। Thank you, Madam Kausar. Thank you so much. You were very comprehensive and you are a very कहते हैं ना strong supporter of libraries, which I appreciate. Thank you so much. Dr. Atifa, I think उनको कहा था, उनके खोल दीजिए माइक प्लीज। I'm sorry, but one by one ही सबकी बारी आ सकती है। So, Dr. Atifa जी। मैम आतिफा का तो हैंड रेस है ही नहीं है। उनका था डॉक्टर आतिफा, इफ आई एम नॉट, माइट बी मैंने नाम पहले था, अब नहीं है। अच्छा चले ठीक है फिर। मैम रिफत परवीन। हाँ रिफत परवीन, उनका कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। टाइम की हाँ जी शॉर्टेज की वजह से मैं टू द पॉइंट जो है वो पॉइंट्स को करूंगी। एक तो ये है कि मैडम जो हम खुद अच्छी बुक्स पढ़ें, उन के बारे में हम बच्चों को जो है वो इंफॉर्मेशन दें और उन बुक्स के बारे में बताएं। दूसरा ये है कि क्लास के जो है पढ़ाने के बाद 10 to 15 मिनट्स जो बचते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज के साथ साथ मैं मुख्तलिफ कभी किताबें जो है वो इशू करवाती हूँ और ले जाके हम कहते हैं कि चलें आज हम कोई एक आर्टिकल जो है वो इसमें से पढ़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग सा, उसको हम इस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं। थर्डली जो है वो ये है कि न्यूज़पेपर कभी मैं ले जाती हूँ कि चलें इसमें से एक पिक्चर है तो इसकी आप जो है वो कोई स्टोरी नरेट करें, तो इससे था कि चलें न्यूज़पेपर और वोकैबुलरी बच्चों की जो है वो इंक्रीज हो और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। थर्डली मैडम ये है कि बच्चों से भी ये राय कि आपने कौन सी जो इस वीक में अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ जो है वो शेयर करें। फिर जो है वो 5 अच्छी बुक्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उनकी एक जो है वो लिस्ट
लिस्ट बनाएं और अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि आपको पता है किस राइटर की कौन सी बुक्स जो है वो ज्यादा आपके लिए वो अच्छी हैं। और मैडम एक चीज ये कि हम जितनी यूज्ड बुक हमारे पास हों, जो कि हम पढ़ चुके हों, एक जर्नल कॉर्नर अगर लाइब्रेरीज में सेट कर दिया जाए और वहां पे उसको डोनेट कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे फ्री टाइम में जाके वहां पे बैठ के इशू ना करवाना चाहें, वैसे बैठ के पढ़ के आना चाहें, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम बुक रीडिंग जो है बच्चों में कर सकते हैं उसको। और एक चीज ये कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में मैडम देखें बस स्टॉप्स हैं, बाकी पार्क्स हैं, वहां पे भी अब जो है वो लाइब्रेरी कॉर्नर्स जो हैं वो बन चुके हुए हैं। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि अब इस तरफ हमें आने की जरूरत है, ताकि हम जो है वो मोटिवेट कर सकें अपने लोगों को। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जो एक्सेस है लाइब्रेरीज की वो सबके लिए होनी चाहिए। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की बात जैसे डॉक्टर फराह फातिमा ने की, मुझे बहुत वो होता है कि एक बार मैं गई हूँ, लेकिन ये कि वो परमिशन ही नहीं मिलती अंदर जाने की, और उसमें कई कंडीशन रखी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इन चीजों को हमें जो है वो छोड़ के इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग की तरफ आना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। मैडम रिफत के बाद मैडम ताहिरा अगर वो बोलना चाहती हैं तो यू कैन से, या डॉक्टर आसमा का खोल दीजिए, अगर उनका नाम पहले खोल दिया जी। डॉक्टर आसमा, would you like to say something? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर अस्मा अकमल। मैडम आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप मैडम जो फ्यूचर की सिचुएशन जो है ना, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, वो काफी हॉरिबल है इन द सेंस कि अब हमारे बच्चों की क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है, तो ना उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत वीक है, ना उन्हें इंग्लिश आती है ना उन्हें उर्दू आती है। तो ये हमें उनको फोर्स करना है कि हम उनको हर वक्त क्लास में जो है वो एक बुक सजेस्ट करें, हम उस पर बुक रिव्यू लें, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक साहब ने कहा कि आगे एआई आ जाएगी, वो आ जाएगी। हम एक ऐसी जनरेशन को विजुअलाइज करें कि जिसकी बैक पे नॉलेज ही नहीं है, तो वो एआई में क्या टेम्पलेट डालेंगे। आज आपको एआई में जो टेम्पलेट मिलते हैं ना, वो हमारी जनरेशन के, उनकी उर्दू भी अच्छी है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, वो लेटर अच्छे लिख के डाल रहे हैं। 20 साल के बाद जब कुछ भी नहीं होगा, तो एआई का भी स्टैंडर्ड वो नहीं रहेगा जो वहां पे टेम्पलेट होंगे। दिस इज माय पॉइंट। बिल्कुल, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक डॉक्टर आसमा के बाद ताहिरा मैडम को अगर कर दें, आई थिंक उन्हीं का हाथ है, उसके बाद तो आई थिंक वी वोंट हैव टाइम। मैडम ताहिरा। जी माइक अलाउ कर दिया उनको। हाँ मैडम ताहिरा। वो नहीं बोल रही, तो फिर मैडम आयशा का कर दें, आयशा महमूद लाहौर से। मैडम आयशा का खोल दो माइक। जी खोल दिया। जी मैडम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो ये स्टेज पे हम अपने स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, उस स्टेज पर तो उनको फोर्स ही किया जा सकता है। थोड़ा सा मोटिवेट तो मैं भी करने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन जब मैं उनके रिटर्न मटेरियल देखती हूँ तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि रीडिंग करें, ताकि अपनी पसंद की बेशक स्टोरी बुक्स पढ़ें, लेकिन उससे आपका राइटिंग स्किल भी बेहतर होगी। लेकिन एक्चुअली ये जो हैबिट है रीडिंग की, ये छोटे बच्चों में डेवलप की जा सकती है। और मेरी फैमिली में जो मदर्स हैं वो कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत शौक है बुक रीडिंग का, उनकी अपनी लाइब्रेरीज भी हैं घर में, तो उनके बच्चे वो इसी एज ग्रुप के हैं जो इस वक्त 20 साल के हैं, तो वो बुक रीडिंग अभी भी करते हैं रात को सोने से पहले, क्योंकि उनके मदर्स हैं उनको छोटे होते से उनके सामने बैठ के रात को सोते हुए किताब पढ़ी थी, और वो बच्चों ने वो अडेप्ट किया अपनी मदर की उस हैबिट को। तो ये ऐसी चीजें जो आदतें तो बचपन से डेवलप होती हैं, बाद में थोड़ा सा उसको शार्पन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेरी हाँ, वेरी वेल सेड। I think I need to wind up because I think time khatam ho raha hai. I need to wind up. Thank you very much. You have all been a lovely class for me, and I'm very grateful for you for listening to me so patiently. I hope you have got some good ideas from our session today. Just to wind up my session, I would like to say a few words. हमारी किताब से दोस्ती बहुत जरूरी है।
आपको आहिस्ता आहिस्ता जिन वक्त गुजरता जाता है तो हमें रियलाइज होता है कि किताब कितनी अच्छी दोस्त है, और यही चीज हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है और इनकलकेट करनी है. सो आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट माय फेलो colleagues to please still go and encourage the students to go to the library.